Hello, children. Good morning. Welcome in today's science class. Children, what we will do today? Today we will start a new lesson, and that is the last lesson also. What is the name of lesson? Lesson number 13, Plant and the Environment. This is the name of the lesson. Children, where do we live? On which planet? Solar system पढ़ा है ना? On which planet we live? We live on Earth. So, what is present around us? Around us, many living things, non-living things that impact our life and the air, the weather. These all together makes the atmosphere. ये सब मिलके क्या बनाते हैं? Atmosphere बनाते हैं. We will read in this lesson. How many things we will read this lesson? We will read about what the environment is made of. Children, I am going to share the book pages. It is in your book page number 119. Open the page number 119. Okay? Yes, this is your book page. Plants and the environment. We will learn what the environment is made up of. And then another topic, how plants keep our environment green and ways to save trees and forest. These are the different topics of the lesson. Children, here are some pictures. You have to find out कि what you should do. यदि आपको प्लांट ग्रो करना होगा, we need ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है. टू ग्रो प्लांट, what activity we should do and what we should not do. Color the smiley green. उसको ग्रीन कलर से करना होगा कि वो करेगी. Yes, this is the first. Yes, we should water the plant. हमको प्लांट को वाटर डालना चाहिए ना. We should water the plant. Then you have to color it with green. And this we should never do. The girl is pulling the plant. This is very, very bad. We should not harm the plant. To save our environment, we must plant new trees. This is the girl planting new trees. This is wrong. This you should not do. ये आपको नहीं करना चाहिए. And you should not pluck the flowers. और आपको पत्तों को नुकसान भी पेड़ों को नहीं पहुंचाना चाहिए ना. Okay? Let's do. Children, you can see in this picture, what you can see? These are the mountains, grassland, animals, houses, people. So all living and non-living things. Some things are living in this picture and some things are non-living. That surround us. जो हमारे चारों ओर हमको घेर के रहती हैं. And affect our life. और हमारे life पे अपना असर डालती हैं. Make up our environment. And it means, इसका मतलब क्या हुआ? All living thing, non-living thing that are present around us that impact on our life and the weather of that place together they make our environment. हम उनको क्या कहते हैं? Environment. To live a healthy life, we must keep our environment clean. Environment को हमको कैसा रखना चाहिए? Clean. Plants keep the environment clean and healthy in many ways. सबसे अच्छा तरीका क्या है प्लांट को एनवायरमेंट को क्लीन करने का? मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्लांट ट्रीज. कौन एनवायरमेंट को क्लीन करता है? प्लांट. एंड दे डू दिस बाय डिफरेंट वेज, मेनी वेज. लेट्स रीड वन बाय वन. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट. द फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स क्लीन द एयर वी ब्रीथ. हम ऐसे करके हमने ब्रीथ किया तो हमने क्या लिया? एयर इनहेल किया ना. तो प्लांट क्या करते हैं? जो एयर सराउंडिंग में हमारे होती है उसको क्लीन करते हैं. हाउ दे क्लीन? द लीव्स ऑफ द प्लांट एक्ट लाइक फिल्टर्स एंड क्लीन द एयर फॉर अस. जो प्लांट की लीव्स होती है वो एक फिल्टर का काम करती है. आपको पानी साफ पीना होता है, फिल्टर लगा लेते हो. जस्ट लाइक दैट लीव्स एक्ट एज अ फिल्टर एंड दे क्लीन द एयर प्रेजेंट अराउंड अस. एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर and breathe out carbon dioxide. हम लोग, all human being, all animals, we all breathe in oxygen और carbon dioxide को हम बाहर निकालते हैं, exhale करते हैं. The plants on the other hand take in carbon dioxide from the air.
एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। और जितनी हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में कार्बन, सपोज प्लांट नहीं होता तो क्या होता बेटा, पूरे एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाता ना, ऑक्सीजन कहाँ से आता, हम लोग लीव कर पाते हैं? नो। तो प्लांट कितना बड़ा काम करते हैं, दे क्लीन द एयर, दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ले लेते हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन। दस प्लांट्स इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि प्लांट हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, घटाते हैं, एंड दे प्रोड्यूस, और क्या इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज करते हैं। बाय सीइंग दिस पिक्चर दिस इज क्लियर, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे होता है बेटा, इधर देखो, ये एक सर्कल के फॉर्म में तुम ऐसे देख सकते हो, ये एक साइकिल पूरी चलती रहती है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द प्लांट, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ जिसमें कौन सी गैस बाहर आती है, जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं, व्हाट गैस दे प्रोड्यूस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय प्लांट, प्लांट कौन सा गैस निकालते हैं, रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, एंड इट इज टेकन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, और वो ऑक्सीजन को हम लोग सब ले लेते हैं। और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और ये कौन सी गैस ये निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लिए और बदले में ऑक्सीजन देती है। और कार्बन डाइऑक्साइड लेके ये क्या करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ये अपना फूड बनाते हैं, और फूड बनाने में कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन। दस वी कैन से दे आर इंटरडिपेंडेंस, प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हो ना, प्लांट किसके लिए डिपेंड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, बनाएंगे हम लोग नहीं निकालेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, वो फूड कैसे बनाएगा। ओके चिल्ड्रन, लेट्स डू द another thing. Children, and what is another use of plants? Plants provide food and shelter to animals. Children, we all know that plants or trees are the home of many animals. A squirrel, different type of birds, they lives on trees. All herbivores, they get their food from the plant. कुछ एनिमल्स को ये शेल्टर देता है, होम देता है, उसके अलावा इट गिव्स अस फूड आल्सो। आप सुबह से रात तक में याद करो, the things which you eat, from where you get these all things, from the plant. Anyway, direct indirect कोई चीज प्लांट से मिली, गेहूं आपको मिला, फिर उसको उसका प्रोसेसिंग होकर फर्दर उसका आटा बना, देन यू हैव ईटन द, रोटी खाई आपने, तो मिला कहाँ से, अब अल्टीमेट वी गेट our food items from the plant, most of the food item from the plants. And another importance of plants, plants protect the soil, और वो रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल टुगेदर। प्लांट जो है मिट्टी को भी बचा के रखते हैं, उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को बिल्कुल पकड़ी रहती है। दे प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे बाय हैवी रेनफॉल। जब बहुत गहरी बारिश होती है तो ये अपने में से सॉइल को बहने से बचाते हैं ना, दिस प्रिवेंट्स द सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे बाय हैवी रेनफॉल। जब हैवी रेनफॉल होता है तो इसमें से जो सॉइल होता है वो बह के चला जाता, लेकिन प्लांट्स इनको प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, दे होल्ड द सॉइल टुगेदर। ठीक है, और क्या करते हैं प्लांट या ट्रीज, ट्रीज गिव शेड एंड कीप अस कूल। The leaves of the trees block the sunlight and absorb a lot of sun's heat. हम लोग अपने घर के चारों ओर ट्रीज लगाते हैं बेटा, तो हमारे घर के अंदर ठंडक रहती है ना। एक डायरेक्ट यदि सनलाइट, आप सोचो किसी फील्ड में केवल एक घर बना हुआ है तो वो घर कितना गर्म होगा, और एक घर को देखो जिसके चारों ओर ट्रीज हैं, वो घर कितना ठंडा रहता है ना। Why? Because the leaves of the trees blocks the sunlight and absorb lot of sun's heat. सन की हीट को वो अपना एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें प्रोटेक्शन, कूल एयर देती हैं। The trees gives us shade and keep us cool on hot days. और हमको गर्मी के दिनों में कूल भी रखती हैं। करते हैं ना ये चीज, ट्रीज करते हैं। Okay, these are the importance of trees. We can say the trees are very, very important. And what are the another point? Plants help in increasing the rainfall. और प्लांट क्या करते हैं, रेनफॉल को करने में मदद करते हैं।
प्लांट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, अपने रूट से जमीन का पानी अब्सॉर्ब करते हैं, एंड गिव आउट वाटर वेपर फ्रॉम देयर लीव्स, और उनसे वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में लीव्स में से निकलता है। वाटर वेपर वाले लेसन में पढ़ा था ना हम लोगों ने एयर वाटर में कि प्लांट्स की लीव्स क्या निकालती है, वाटर वेपर। और ये वाटर आता कहाँ है प्लांट्स पे, दे टेक फ्रॉम बाय देयर रूट फ्रॉम द सॉइल। दिस वाटर वेपर राइजेस अप टू फॉर्म क्लाउड्स, और यही वाटर वेपर ऊपर उठ के जाता है और क्लाउड बनाता है, एंड लेटर इट फॉल्स एज रेन, और बाद में वो रेन के फॉर्म में यहाँ नीचे गिरता है। ओके चिल्ड्रन, दस वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग द ट्रीज एंड फॉरेस्ट, सो इट्स आवर ड्यूटी कि जब प्लांट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो हमको उसको सेव भी करना चाहिए। हाँ, कैसे हम लोग ट्रीज और फॉरेस्ट को सेव करें? We know how important the plants are for keeping the environment healthy. जिस environment में हम रहते हैं उसको healthy बनाने के लिए हमने देखा ना प्लांट कितना important है। We must save our forest to protect our environment. अपने environment को सेव करने के लिए हमको क्या सेव करना चाहिए? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं। We can save our trees and forest by, कैसे कैसे कर सकते हैं? Not cutting down the trees. यदि हम ट्रीज को कट नहीं करेंगे तो वो अपने आप ही सेव रहेगा। प्लांटिंग मोर ट्रीज, और नए प्लांट खूब सारे लगाने चाहिए। यूजिंग मटेरियल्स अदर देन वुड टू मेक थिंग्स, और लकड़ी के अलावा दूसरी चीजों के भी सामान हमको बनाने चाहिए ना, क्योंकि वुड का यदि सब हम फर्नीचर, हाउसेस का रूफ, डोर, सब कुछ यदि इफ वी विल मेक वुड तो क्या होगा, फॉर हाउ, फ्रॉम वेयर वी गेट वुड? वी गेट वुड बाय कटिंग द ट्रीज ना। ट्रीज को कट करके ही तो वुड लाते हैं, तो हम थोड़ा सा इस्तेमाल उसका कम करेंगे। फॉलोइंग द रूल्स ऑफ 3 R's, दैट इज रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस। जो चीजें हार्मफुल हैं उनको हमको कम यूज करना चाहिए। ओके, ये देखो, फॉलो द रूल्स ऑफ 3 R's, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ऑफ द टू सेव द एनवायरमेंट। रिड्यूस मतलब हमको जो चीजें नुकसान करती हैं हमारे एनवायरमेंट को उसको कम यूज करना चाहिए। रीयूज हमको फिर से चीजों को यूज करना चाहिए, एंड रिसाइकल उसको वापस धरती लाने का प्रयास करना चाहिए और फिर वापस यूज करके उसको प्रोड्यूस करने का प्रयास करना चाहिए। बाय दिस इज नोन एज रिसाइकिल। ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन आपने देखा ना, लेट्स अभी हम लोग क्या करेंगे, ये चेक पॉइंट भी करेंगे। व्हाट वी हैव लर्नड चिल्ड्रन, अभी आपने क्या सीखा? दैट हमने व्हाट वी हैव लर्नड, अभी हमने क्या लर्न किया? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस एंड इम्पैक्ट आवर लाइफ is known as our environment. So we live in environment, so it's our duty to keep the environment clean. और environment clean किसकी वजह से होता है? Plant play a major role in cleaning the environment. How they clean? They are very helpful. They clean by different ways. Very first, they produce oxygen, make the air clean. जो air हमारे चारों ओर होती है, we can live, हम बिना air सांस लिए जिंदा रह सकते हैं? No. We और animals कोई भी नहीं रह सकता। तो plant help us to clean the air. When we breathe out, कौन सी गैस बाहर आई? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द होल एरिया इज फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड। मेनी पीपल्स, मेनी बर्ड्स, एनिमल्स आर लिविंग ऑन द अर्थ, तो फिर अर्थ पे तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। Then the plant plays a major role. What they do? They absorb this carbon dioxide. जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाली, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड किसने ले ली? Who has used that carbon dioxide? Trees or plants. With the help of carbon dioxide, sunlight, they make food. अब बदले में उन्होंने क्या दिया? In turn, they have given oxygen. उन्होंने हमें ऑक्सीजन दिया। Okay? And children, plants and other, they clean the air and they give the food items. वो जो भी कुछ भी हम खाते पीते हैं, फल फूल सब्जी, from where we get all these things from the plant. The plant supply us food and it gives us shade, और हमको छाया देते हैं और हमारे घर को कूल रखते हैं। एंड हम फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए जो वुड का यूज करते हैं वो सब कुछ हमको प्लांट से मिलता है।
एंड प्लांट इज द होम ऑफ मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स ना, वो प्लांट उनका घर भी तो होता है, वो उसी में रहते हैं. एंड द अदर यूज इज प्लांट ब्रिंग्स रेन, प्लांट्स बारिश भी लाते हैं. कैसे बारिश लाते हैं बेटा? जो अर्थ में वाटर प्रेजेंट है उसको जो प्लांट के रूट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस वाटर, उसके जो लीव्स होती हैं प्लांट की, उस पे वाटर वेपर के फॉर्म में वो बाहर निकालता है. दीज वाटर वेपर टेम्परेचर हाई होता है, इवेपोरेट होके एयर में चले जाते हैं और एयर में जाकर के क्या बनाते हैं? क्लाउड बनाते हैं. और वहां पे रेन ज्यादा होगी. जहाँ पे ट्रीज ज्यादा होंगे, जहाँ पे प्लांट ज्यादा होगा, वहां पे क्या होगा? वहां वाटर वेपर ज्यादा होगा. देन डेफिनेटली दे विल मेक अ क्लाउड. और क्लाउड जब यहाँ पे ज्यादा होते हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे बारिश होगी. दस they help to increase the amount of rain also. हमने देखा प्लांट कितने यूजफुल है. सो वी शुड सेव ट्रीज. हमको ट्रीज सेव करना चाहिए, हमको ट्रीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए. वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हमको बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए. जो ऑल विल मेक अ प्लांट ग्रो करेंगे. हम लोग सब लोग एक प्लांट लगाओगे. यस. Children, now the one thing is that is the URL with eraser and pencils. Let's do this. Page number 121 का ये जरा देखो कितना हम लोग को समझ में आया. चलो इसको करके देखते हैं. If you have done, it means आपको इतना पढ़ा हुआ समझ में आ गया. Let's do dear. You all are ready? आप सब ready हो with eraser and pencils? Let's do one by one. Children, you read the lesson and you have to write whether it is true or false. आपको क्या लिखना है? ये true है कि false है. Okay? You have to write true or false. Everything that surround us make up our environment. हमारे चारों ओर जो चीजें हमको हमारे हैं वो environment बनाती हैं. Make up our environment. ये true है कि false? Of course it is. ये क्या है? True. Everything that surround us makes up our environment. ना ये true है ना? You all write true. Now come to the second one. Plants clean the air by releasing carbon dioxide. प्लांट एयर को क्लीन करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके. ये ट्रू है क्या? नो, दिस इज फॉल्स. प्लांट क्या रिलीज करती हैं? दे रिलीज ऑक्सीजन ना. ऑक्सीजन से ना प्लांट एयर क्लीन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से होता है? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. प्लांट क्लीन एयर बाय रिलीजिंग, यहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? फॉल्स है. कम टू द थर्ड वन. अब जरा हम लोग थर्ड वाले को देखते हैं. रूट्स प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे. जो रूट होते हैं वो सॉइल को वॉश्ड अवे बहने से बचाते हैं. यस, इट इज ट्रू. वो होल्ड करते हैं. सॉइल को कौन होल्ड करता है? प्लांट्स होल्ड करके रखते हैं. आप एक जगह देखो जहां पे बहुत सारी ग्रास एक मिट्टी में लगी हो और एक मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, वहां देयर इज नो ग्रास. और जब रेन वाटर आएगा तो कहाँ की मिट्टी पहले बह जाएगी? वेयर देयर इज नो ग्रास. इट मीन्स कि roots prevent the soil from being washed away. तो नंबर 3 is true. prevent करते हैं ना? Yes. Come to the number 4 बेटा. Trees do not give us shade. ये कह रहे हैं कि प्लांट ट्रीज हमको शेड नहीं देती हैं. दिस इज फॉल्स. फॉल्स है ना? ट्रीज गिव्स अस शेड ना. ट्रीज तो हमको शेड देती है ना? यस. Now come to the another one, that is the last one. ये वाला देखो, ये क्या है? Plants help in increasing the rainfall. Plant rainfall बढ़ाने में मदद करते हैं. Yes, true. How? वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर वेपर अपनी पत्तियों से लीफ से थ्रो आउट करते हैं. It condenses, it forms the clouds and brings the rain. ये देखो ऊपर लिखा ही है. Plants help in increasing rainfall. This is the true statement. ये क्या है? ये this is true. Okay? आप सब ध्यान से देखो, ये सारा करो. देखो, everything that surround us make up our environment. It is true. True लिखेंगे. Plants clean up the air by releasing carbon dioxide. It is false. वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन. Roots prevent the soil from getting washed away.
बिल्कुल प्रिवेंट करते हैं, दिस इज ट्रू. Trees do not give a shade. This is false. Plants help in increasing the rainfalls. It is true, dear. ये बात सही है ना? Okay, children. Now I hope you all have done. Children, you understood the things. आप चीजों को समझ के you try to do by your own. आप अपने से खुद से करोगे, then you will learn. You have understood why the statement is true and why the statement is false. The main thing is to understand. क्योंकि आप बात को समझ जाओगे तो आप खुद ही कर लोगे. It is true or false. Just I have helped you. मैंने आपको करके बताया. If there is any confusion, you check it from this video and you make it correct. Okay, children? Today we have learned about the environment के बारे में पढ़ा and we have seen how plants and animals are interdependent. एक दूसरे पे कैसे dependent है. क्या अर्थ पे केवल एनिमल रहेगा, अरे केवल ह्यूमन बीइंग और एनिमल रहेंगे तो हम रह सकते हैं? नो, वी नीड प्लांट. क्या केवल प्लांट रहेंगे तो क्या प्लांट केवल सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं, दे नीड, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग और हम लोग सब देते हैं. तो दस वी बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. और हमने क्या पढ़ा? द इम्पोर्टेंस ऑफ, वी हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पढ़ा and how we should save trees. We should plant more trees. We should not do any activity to destroy the land. प्लांट, कोई भी प्लांट को नुकसान पहुंचाने की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए. We should plant more trees. Okay, children, the next topic of the lesson we will read in the next class. Bye bye, children. Whatever I have taught you, read it again and again. Meet you soon in the next class. Okay, dear, read the lesson. This is very, very important. You should read the lesson. Okay, to practice of reading. Okay, meet you soon in the next class. Bye bye, dear.